بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ رات کا سناٹا پھیلنے کو تھا۔ میں بھی اپنا کلینک بند کر کے گھر جانے کا سوچ رہا تھا۔ ابھی میں اٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک نرس نے آ کر مجھے بتایا کہ ایک لڑکی زخمی حالت میں کلینک پر آئی ہے۔ میں نے نرس سے کہا کہ فوراً اسے اندر بھیجو۔ وہ لڑکی نرس کا سہارا لیتی اندر آئی۔ اس کا زخمی وجود اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ نہایت برے حالات سے گزر کر آئی ہے۔ اس کے سفید کپڑے خون سے رنگے ہوئے تھے اور پیشانی سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کی مرہم پٹی شروع کر دی۔ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے وہ نیم بے ہوشی کسی کیفیت میں تھی۔ شکر تھا کہ زخم زیادہ گہرے نہیں تھے، اسی لیے فوراً ہی اسے درد کم ہونے کا انجیکشن لگا دیا۔ سفید کپڑے، سیاہ لمبے گھنے بال بکھرائے، وہ بلا شبہ ایک نہایت حسین لڑکی تھی۔ مریضوں کے بستر پر لیٹی اب وہ انجیکشن کی وجہ سے سو رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس حالت میں یہ لڑکی اکیلی کہاں جائے گی، اس لیے نرس کو میں نے گھر جانے کا کہہ دیا۔ خود اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کلینک رات گئے تک کھلا ہوا تھا، اس لیے ایک دو مریض اور بھی آ گئے تھے۔ میں ان میں مصروف ہو گیا۔ دیکھا تو وہ لڑکی کچھ ہوش کی کیفیت میں آنے لگی تھی۔ میں فوراً ہی اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ اچھا ہوا آپ کو ہوش آ گیا، میں بھی بس کلینک بند کر کے گھر ہی جا رہا ہوں۔ اب وہ آہستہ آہستہ کر کے بستر سے نیچے اتر رہی تھی۔ پھر میں ہمدردی کی وجہ سے اس سے کہنے لگا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس حالت میں تنہا جانا ٹھیک نہیں ہے، اور پھر رات بھی گہری ہو چکی ہے۔ لڑکی بہت اداس اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں بھلا کہاں جاؤں گی؟ کئی راتوں سے میں سڑک کے کنارے ہی سو کر اپنا وقت گزار رہی ہوں، آج بھی وہیں چلی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے اٹھی۔ اتنی حسین خوبصورت لڑکی، اور پھر اکیلی ذات۔ میں اتنا بے رحم تو نہیں تھا کہ اسے یوں اکیلے جانے دیتا۔ پھر میں نے اسے پکارا، سنو، اگر تم لاوارث ہو تو میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہو۔ کچھ دن بعد میں تمہارے رہنے کا بندوبست کر دوں گا، فی الحال تم میرے گھر جا کر پناہ لے سکتی ہو۔ کون تھی، کہاں رہتی تھی، کن حالات سے گزر کر آئی تھی، میں یہ سارے سوالات بھی اسے ابھی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ وہ زخمی حالت میں تھی، اوپر سے نہایت پریشان بھی۔ میری بات سن کر خاموش کھڑی رہی، پھر وہ میرے ساتھ میرے گھر جانے پر راضی ہو گئی۔ میں اسے اپنے گھر تو لے جا رہا تھا، لیکن نہایت شش و پن میں گرفتار تھا، کیونکہ میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا، جبکہ وہ لڑکی نوجوان تھی۔ میرا ڈیفنس میں بنگلہ تھا۔ میں اپنی کار میں بٹھا کر اسے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ یوں تو میرے سامنے 3 ملازمین بھی اس بنگلے میں رہائش پذیر تھے، ایک چوکیدار، ایک مالی اور ایک کک، لیکن پھر بھی میں نے عورت ذات کا وجود بنگلے پر نہیں رکھا تھا۔ میرا نام عادل ہے، میں پیشے سے ایک ڈاکٹر تھا۔ میری فیملی 3 بہن بھائی اور امی ابو پر مشتمل تھے۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی اور ایک بہن شادی شدہ تھے، وہ برطانیہ میں رہتے تھے، امی ابو بھی ان کے ساتھ وہیں رہائش پذیر تھے۔ میں نے اپنی ڈاکٹری کی تعلیم وہیں سے حاصل کی، لیکن میرا پاکستان میں رہنے کا ارادہ تھا۔ یہ بنگلہ جب ہم چھوٹے تھے تو ابو نے ہمارے رہنے کے لیے خریدا تھا، لیکن ابو کا بزنس یہاں سیٹ ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ پھر انہوں نے دوسرے ملک جانا ہی مناسب سمجھا، جو ہماری پوری فیملی برطانیہ شفٹ ہو گئی تھی۔ اتنے سال وہاں گزارنے کے باوجود بھی امی نے ہماری بہت اچھی تربیت کی تھی۔ ہمارے اندر انسانیت اور ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ پھر میں نے اپنے ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کی اور پاکستان رہنے آ گیا۔ یہاں پر میں ایک دن میں ہسپتال میں نوکری کر رہا تھا اور شام میں کلینک چلا رہا تھا۔ کلینک میں نے صرف ایک جذبے کے تحت کھولا تھا، نہایت کم فیس میں مریضوں کو مفت دوائیاں دیا کرتا۔ دونوں بڑے بہن بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ امی ابو کا اصرار تھا کہ تم بھی شادی کر لو۔ میں کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتا تھا، لیکن آج تک مجھے کوئی ایسی لڑکی نہیں ملی جسے دیکھ کر میرے دل میں شادی کی خواہش جاگ جاتی۔ اس لیے میں نے اپنے جذبوں پر بند باندھ کر ابھی اپنے پیشے سے محبت کے تحت کام میں مگن تھا۔ ابو کا خاندان بھی کافی بڑا تھا۔ میرے پھپھو، چاچا اور دیگر رشتہ دار یہاں رہائش پذیر تھے۔ وہ کبھی کبھار مجھ سے ملاقات کے لیے میرے بنگلے پر آ جاتے، لیکن میں زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے ان کی طرف چکر ہی نہیں لگا پاتا۔ مجھے پاکستانی کھانے کا بہت شوق تھا۔ زیادہ تر میں دیسی کھانے پسند کرتا تھا،
इसी लिए मैंने अपने उस शौक की खातिर एक अच्छा पकाने वाला बावर्ची भी रखा हुआ था। रुपए पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं थी, इसीलिए अपनी ज़िंदगी ऐश से गुजार रहा था। आज उस खूबसूरत से लड़की को देखा तो न जाने क्यों दिल में अजीब व अजीब ख्यालात आ रहे थे। मैंने इतनी मासूम और उदास लड़की आज तक नहीं देखी थी। इत्तेफाक से उस लड़की की आंखें भी गहरी सब्ज रंग की थी। मेरे दिल में शुरू से ही ख्वाहिश थी कि मेरी होने वाली बीवी की आंखें निहायत खूबसूरत हों। मैंने उससे कई सवालात किए। दिल में बार बार ख्वाहिश भी पैदा हो रही थी, लेकिन उसकी ज़ख्मी हालत और मासूम सूरत को देखते मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उससे कोई सवाल कर सकता। पूरे रास्ते वो खामोश बैठी चुपचाप अपनी गोद में रखे हाथों को देखती रही। थोड़ी देर बाद मेरा बंगला आ गया। फिर मैंने उसे अंदर आने का इशारा किया। गेट पर चौकीदार मौजूद था। वो बड़ी हैरत से उस खूबसूरत लड़की को देख रहा था जो ज़ख्मी हालत में मेरे साथ आई थी। मैं जानता था कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। उसकी यही ख्वाहिश होगी कि पहले तो साहब ने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, और आज एक अजनबी लड़की को घर लेकर आ गया। मैंने उसे गेस्ट हाउस वाला कमरा दिखा दिया। अब वो वहाँ जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मैं खाना खाने की घर से नीचे टेबल पर आया तो बावर्ची मेरे इंतज़ार में जाग रहा था। उसने मेरे आने के साथ ही टेबल पर खाना सजा दिया। मैं जैसे ही खाने की टेबल पर बैठा तो सोचने लगा कि वो लड़की भी बेचारी भूखी उस कमरे में बैठी होगी, इसीलिए खुद उठकर गेस्ट हाउस वाले कमरे में गया। वो घुटनों में मुंह छुपाए खामोश बैठी थी। मैं उससे कहने लगा कि परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है, खाना खा लो आकर। मेरी बात सुनकर वो खामोशी से उठ आई और टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी। उसे देखते साथ ही मेरे दिल में मोहब्बत ने सर उठाया। न जाने क्यों उस लड़की के लिए मैं अपने दिल में नरम जज्बा महसूस कर रहा था। वो बिल्कुल थोड़े से चावल डालकर प्लेट में खाने लगी। उसकी उंगलियां इंतहाई सफ़ेद गोरी रंगत की थी। नरम और नाजुक हाथों से वो खाना खाते हुए भी बहुत प्यारी लग रही थी। फिर थोड़ा सा खाना खाया और सीधी उसी कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैं भी कमरे में जाकर आराम करने लगा। पूरा दिन पहले हस्पताल की ड्यूटी भुगताई थी, फिर क्लिनिक की, इसी वजह से निहायत थका हुआ था। थोड़ी देर बाद गहरी नींद की आगोश में चला गया। रात भर मुझे उसी खूबसूरत लड़की के ख्वाब आते रहे। शायद मेरे दिलो दिमाग पर वही सवार थी, इसीलिए पूरी रात मुझे उसके ख्वाब आते रहे। फिर सुबह में 10 बजे उठा। नाश्ता करने के लिए बाहर लॉन्ज में आया तो हैरान रह गया। वो लड़की लॉन्ज की सफाई कर रही थी। मैंने देखा सोफे के कुशन बिखरे हुए थे और वो उन्हें समेट कर रख रही थी। मैंने सफाई के लिए एक लड़का रखा हुआ था, लेकिन कुछ दिन पहले वो काम छोड़कर भाग गया था। उसने मेरी दराज से कुछ रुपए चुराए थे जिनका मुझे मालूम हो गया था। मैंने उससे शक की बुनियाद पर पूछा तो वो डर गया। दूसरे दिन काम पर ही नहीं आया। 2 दिन से सफाई न होने की वजह से घर की हालत अजीब हो रही थी। बावर्ची बेचारा थोड़ा बहुत सफाई का काम कर लेता, लेकिन ये उसकी ड्यूटी नहीं थी। उसकी ड्यूटी किचन में होती थी। मैं नीचे गया था। उस लड़की ने मुझे धीरे से सलाम किया, फिर एक सोफे पर नज़र झुकाकर बैठ गई। कुक ने मेरे लिए नाश्ता लगाया तो मैंने उस लड़की को भी आवाज़ देकर नाश्ते की टेबल पर बुला लिया। नाश्ते से फारिग होकर मैंने उससे कहा कि तुम अपने घर का पता बता दो ताकि मैं तुम्हें हिफाजत से तुम्हारे घर छोड़ दूं। अभी तक उससे कोई सवाल करने का मौका नहीं मिला था और ना ही मैं उसका माजी कुरेदना चाहता था, इसीलिए उसकी हिफाजत से घर छोड़कर मैं भी उसकी जिम्मेदारी से आज़ाद होना चाहता था। वो सर झुका कर कहने लगी, साहब जी, मेरा कोई घर नहीं है, मैं बेघर हूँ। मेरा नाम नबीला है। मैं अपने चचा के घर रहती थी। माँ बाप बचपन में ही फौत हो गए थे। चचा भी एक दिन ये दुनिया छोड़कर चला गया तो चची ने मुझ पर जुल्म ढहाने शुरू कर दिए। वो मुझे गलत कामों पर मजबूर करती, लेकिन मैं फितरतन ऐसी लड़की नहीं थी। शायद मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि मैं बेइंतहा खूबसूरत थी। मोहल्ले पड़ोस के लड़के भी मुझ पर आवाज़ कसते। मैं कहीं आती जाती भी नहीं थी, बल्कि बस घर में ही छुपी रहती। फिर एक दिन एक काला सा आदमी आया। उसने चची से ढेरों पैसे दिए उन्हें और मुझे एक रात के लिए अपने साथ लेकर जाना चाहा। चची तो पैसे को देखकर बखुशी इस रात पर राज़ी हो गई थी, लेकिन मैंने उनकी बातें सुन ली थी। मैं किसी कीमत पर भी ये गलत काम करने पर राज़ी नहीं थी, इसीलिए मौका देखकर रात को घर से भाग निकली। भागते भागते सड़क पर पहुंच चुकी थी, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं सड़क पर भाग रही थी
एक कार वाले ने मुझे टक्कर मार दी। उसने एक्सीडेंट करके फ़ौरन ही कार भगा ली। मैं वहीं सड़क पर पड़ी तड़पती रही। फिर ज़्यादा जब खून बहने लगा तो हिम्मत करके उठी और आपके क्लिनिक को देखकर वहाँ चली आई। अब आप ये बताएं, मैं अपने घर जाने के दरवाजे तो बंद कर आई हूँ, अब मैं किस मुंह से वहाँ जाऊँगी? मेरी चची ने तो मुझे गला दबा कर ही मार देना है। अब आप मुझ पर एक एहसान कर दें, मुझे किसी दारुल अमान में छोड़ दें ताकि मैं वहीं रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं, या मुझे अपने ही इस बंगले पर कोई नौकरी दे दें, मैं ज़िंदगी भर आपकी खादिमा बनकर गुजार दूंगी। वैसे भी मुझे घर का हर काम काज करना आता है। मैं वादा करती हूँ कि आपको मायूस नहीं करूँगी। वो गहरी सब्ज आंखों वाली लड़की मेरी यूं मिन्नतें कर रही थी जैसे वो कोई मजलूम बूढ़ी औरत है जिसे काम पर रखने के लिए मैं सोच विचार करता। वो नहीं जानती थी कि मैं अपने दिल में उसके लिए ख़ास जज्बा महसूस करने लगा था। फिर मैं उससे कहने लगा कि शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था, तुम मेरे यहाँ इस बंगले में रहो, क्योंकि 2 दिन पहले ही मेरा सफाई करने वाला लड़का नौकरी छोड़कर चला गया है। तुम उसकी जगह ले सकती हो। अपनी निगरानी में पूरी साफ सुथराई करो घर की, और घर की हिफाजत करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। तशक्कुर से उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसके आंसू देखकर मुस्कुरा दिया और फिर ड्यूटी देने अस्पताल चला गया। वापसी पर घर आया तो पूरा बंगला सोने की तरह चमक रहा था। ऐसे लगता कि उसने एक ही दिन में चमका कर उस बंगले को साफ सुथरा कर दिया है। मैं कमरे में आया तो हैरान रह गया। मेरा इस्त्री शुदा सूट मेज़ पर रखा हुआ था। लगता था कि नबीला ने ही उसे निकाल कर रखा है। अब मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि मुझे किसी अच्छी लड़की को ढूंढकर शादी कर लेनी चाहिए। औरत साथ के आने से ज़िंदगी में किस कदर सुकून महसूस होने लगा था, लेकिन वो एक अजनबी लड़की थी। आज नहीं तो कल उसने ये घर छोड़कर चले ही जाना था। अब ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीली आ गई थी। मैं अस्पताल से सीधा घर जाता तो वो फ़ौरन ही मेरे जाने के बाद टेबल पर खाना लगा देती। फिर शाम को मैं क्लिनिक का रुख करता तो मेरे इस्त्री शुदा कपड़े लाकर मुझे थमाती। वो एक इंतहाई नहायत सलीका शार लड़की थी। मैं देख रहा था कि वो सिर्फ एक ही जोड़ा पहन कर रखती। दिल में ख्याल आया कि इस बेचारी के पास तो कपड़े ही नहीं थे, इसलिए सोचा कि इसे अपने साथ ले जाकर थोड़े कपड़े दिलवा देता हूँ। जब मैंने उससे कहा तो वो कहने लगी, साहब जी आपने खुद ही 2-3 सूट मुझे लाकर दे दें। मैं कभी बाजार नहीं गई, मुझे ख़रीदारी करने का भी कुछ नहीं पता। यूँ मैं एक दिन शॉपिंग मॉल से गुजरते हुए 2-3 सूट उसके लिए ले आया, जिन्हें देखकर उसकी खुशी की इंतहा न रही। फिर एक दिन मैं ड्यूटी से घर आया तो कोई मुझे कहीं नज़र नहीं आया। नबीला भागकर मेरे सामने टेबल पर खाना लगा रही थी। मैं उससे कहने लगा कि बशीर चाचा कहाँ है, ये उनकी जिम्मेदारी है खाना लगाने की, तुम ये काम क्यों कर रही हो? मेरी बात सुनकर वो लापरवाही से कहने लगी, वो तो सुबह से ही नज़र नहीं आ रहे, न जाने कहाँ गायब हैं। अब मैं तशवीश में मुब्तला हो गया। वो एक उम्र रसीदा शख्स था, 2 साल से मेरे पास नौकरी कर रहा था। मैं जानता था कि वो एक गांव में रहता था जहाँ पर उसकी बीवी बच्चे रहते थे। वो महीने 2 महीने में गांव चक्कर लगा लिया करता था, लेकिन मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाता था। फिर मैंने चौकीदार को बुलाया और उससे पूछने लगा कि बशीर चाचा कहाँ है। चौकीदार भी हैरान था। फिर कहने लगा, साहब जी मैंने तो ना उसे आते देखा और ना ही जाते। रात को मैंने उसे अपने क्वार्टर से आते देखा था, लेकिन गेट से निकलते हुए नहीं देखा। मुझे तशवीश हो रही थी, वो भला ऐसे कैसे जा सकते थे। नबीला खामोश खड़ी थी, यकीनन उसने ये सारा खाना बनाया था। फिर मैं उससे माजरत से कहने लगा कि तुम्हें इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी, तुम पूरे घर की सफाई भी करती हो, फिर खाना पकाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर आ गई। वो मासूमियत से कहने लगी कि नहीं साहब जी, मैं दोनों काम कर सकती हूँ, वैसे भी मुझे पूरे घर का कामकाज करना आता है। आप चाहें तो मुझसे अपने कपड़े भी धुलवा सकते हैं। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया, लेकिन दिल में सोच लिया कि अगर चचा बशीर वापस आएंगे तो उन्हें नौकरी से फारिग कर दूंगा। ये कोई तरीका नहीं था कि वो बिन बताए काम छोड़कर चले गए। अब सफाई सुथराई के साथ खाना पकाने की जिम्मेदारी भी नबीला पर आ गई। वो नहायत लजीज खाना पकाया करती थी। मैं सोचता था कि इतनी हसीन लड़की के अंदर वो सारी खूबियाँ मौजूद हैं जो किसी भी बीवी के अंदर होती हैं। मैं जल्दी उससे शादी का इरादा रखता था और इस बारे में अपने माँ बाप से बात करना चाहता था,
लेकिन उससे पहले मैं नबीला की रजामंदी भी पूछना चाहता था। वो न जाने मेरे बारे में क्या सोचती होगी। फिर एक दिन गज़ब हो गया। मैं अपने अस्पताल में मौजूद था जब वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर पर मुर्दा लाश को लेकर जा रहे थे। इत्तफाक से उस लाश के चेहरे से कपड़ा थोड़ा सा हटा हुआ था। मैं उसे देखकर साकित रह गया। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि चचा बशीर का था, जो मेरे बंगले में खाना पकाने का काम करता था। मैंने वार्ड बॉय को वो स्ट्रेचर रोकने का कहा और फ़ौरन ही उनके पास पहुंच गया। उनका मुर्दा वजूद इस बात की गवाही दे रहा था कि वो कई घंटे पहले मर चुके थे। मैंने उनके जिस्म पर मौजूद कपड़ा पूरा हटाया तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि उन्हें खंजरों के वार से कत्ल किया गया था। उनका पूरा मुर्दा वजूद नीला पड़ा हुआ था। ऐसे लगता जैसे उसके जिस्म से खून निचोड़ लिया गया हो। मैं बड़ी अफसोस भरी नज़रों से उनके चेहरे को देख रहा था। फिर वार्ड बॉय से कहने लगा कि ये लाश कहाँ से मिली, कहाँ से उठा कर लाए हो। वार्ड बॉय कहने लगा कि ये लाश एक शख्स उठा कर लाया है। मेरे पूछने पर हलचल मच गई, क्योंकि मैं उस अस्पताल का एक अच्छे ओहदे पर फाइज डॉक्टर था। इसलिए फ़ौरन ही वो शख्स मेरे सामने आ गया। मैंने जब उससे पूछा कि ये लाश तुम कहाँ से उठा कर लाए हो, तो उसने जो पता बताया वो सीधा मेरे घर की तरफ जाता था। उसकी बात सुनकर तो मैं शदीद परेशानी का शिकार हो गया। दिल में सोचा कि अगर पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व हो गई तो लाजमन उनका शक मेरे घर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि आखिर वो मेरे घर पर ही तो नौकरी करता था। फिर एक लावारिस लाश की तरह उसे मुर्दा खाने भेज दिया गया। मैं भी इस मामले में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि मैं जिस मुल्क में अपनी ज़िंदगी गुजार कर आया था, मैं देखता था कि लोग कैसे पुराने मामले में हाथ डालकर केस में फंस जाते हैं। लेकिन चचा बशीर ने 2 साल तक मेरे यहाँ नौकरी की थी और उनकी मौत पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। पूरा दिन मैं जहनी टेंशन का शिकार रहा। इसी परेशानी में जब मैं घर गया तो नबीला मेरे इंतज़ार में लाउंज में सोफ़े पर मौजूद बैठी हुई थी। न जाने उसकी मौत कैसे हुई है। आखिर चचा बशीर की किससे ऐसी दुश्मनी थी जो उसे यूं भयानक तरीके से कत्ल कर सकता था। नबीला की ये बात सुनी तो उसकी रंगत मुतगय्यर हो गई। उसकी बदलती रंगत को देखकर मैं उसे तसल्ली देने लगा कि तुम परेशान न हो, वैसे तुम पहले ही बुरे हालात से गुजर कर आई हो। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं था, लेकिन उनके मरने का मुझे बहुत अफसोस है। उस दिन मेरा खाना खाने को भी दिल नहीं चाह रहा था। मैं यूं ही बगैर खाए उठकर अपने कमरे में आ गया। चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। लग रहा था आज 14वीं शब है। मैं अपनी खिड़की में खड़ा चांद का नज़ारा ले रहा था, लेकिन मेरी सोच से अभी भी चचा बशीर के कत्ल ही घूम रहे थे। अचानक ही मेरी नज़र लॉन पर पड़ी, जहाँ बहुत सारे दरख्त और पेड़ पौधे थे। मैंने एक दरख्त पर कुछ रेंगता हुआ महसूस किया। फिर मैं खिड़की के पास गया और गौर से रेंगने वाली चीज़ को देखने लगा। बेसाख्ता मेरे मुंह से चीख निकली, क्योंकि वो एक लंबा चौड़ा नाग था जो दरख्त पर यूं रेंग रहा था जैसे सदियों से वहीं आबाद हो। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये लंबा चौड़ा नाग मेरे घर में मौजूद होगा। ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इसीलिए मैंने फ़ौरन ही शोर करना शुरू किया। चौकीदार और माली को बुलाने लगा। माली इतने अरसे से लान पौधों की सफाई सुथराई का काम कर रहा था, फिर ये उसे इतना ख़तरनाक नाग नज़र क्यों नहीं आया। मेरे बुलाने पर वो दोनों आ गए। फिर बड़ी सी टार्च लेकर माली और चौकीदार दोनों उस नाग को तलाश करने लगे। वो नाग न जाने कहाँ छुप गया था जो दिखाई नहीं दे रहा था। चौकीदार मुझे कहने लगा कि साहब जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। इतना बड़ा नाग उसका इस लॉन में मौजूद होना नामुमकिन सी बात है। माली बाबा तो रोज़ाना ही यहाँ की सफाई करते हैं। ये मेरी आंखों का वहम नहीं हो सकता। फिर मैंने देखा जब नबीला चलती हुई उस लॉन में आई थी। शायद वो हमारे शोर शराबे से उठ गई थी। उसके पूछने पर मैंने उसे बताया कि अभी अभी मैंने यहाँ पर एक बड़ा मोटा सा नाग देखा है। ये बात सुनकर वो बुरी तरह से डर गई। फिर कहने लगी, साहब जी ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो नाग इस घर में आ गया तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। यही सोचकर तो मैं भी परेशान था। पूरी रात माली और चौकीदार के साथ मैं भी उस नाग को ढूंढता रहा, लेकिन वो मुझे फिर दोबारा नज़र नहीं आया। दूसरे दिन अस्पताल से छुट्टी होने की वजह से मैं घर पर ही मौजूद था। मैंने देखा जब चौकीदार एक अजनबी शख्स को अपने हमरा घर के अंदर ले आया। मेरे पूछने पर वो कहने लगा, साहब जी ये एक सपेरा है,
ये बड़े से नाग को पकड़ने में माहिर है। आप कहें तो मैं इसे कहता हूँ कि ये उस नाग को तलाश करने में हमारी मदद करे। मैं चौकीदार से कहने लगा, ज़ाकिर तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम इसे लेकर आ गए। जाओ इसे लॉन में ले जाओ और इसे वो जगह बताओ जहाँ पर वो नाग मैंने देखा था। मैं आराम से बैठा चाय पी रहा था। नबीला अंदर कमरे में थी। जब बाहर आई तो उसने नया खूबसूरत गुलाबी रंग का जोड़ा पहन रखा था। उसके खूबसूरत स्याह बाल शानों पर बिखरे थे। सर पर अच्छे तरीके से दुपट्टा ओढ़े इस सादगी में भी वो गजब ढहा रही थी। वो भी मेरे सामने सोफे पर आकर बैठी कि मेरे कानों में बीन बजने की आवाज़ें आने लगी। यकीनन वो सपेरा उस नाग को पकड़ने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। मैंने देखा जब उस बीन की आवाज़ सुनकर नबीला सोफे से उछली थी। वो निहायत दहशतज़दा सी उस आवाज़ को सुन रही थी। फिर मुझे कहने लगी कि ये कैसी आवाज़ है, कैसी आवाज़ है। मैं उससे कहने लगा कि फ़िक्र मत करो, कल रात मैंने एक नाग को अपने लॉन में देखा था, इसलिए आज एक सपेरे को बुलाकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जूं जूं बीन की आवाज़ बुलंद होती गई, नबीला को न जाने क्या हो रहा था। वो अपना गला पकड़कर सोफे से अचानक ज़मीन पर गिर गई और शदीद अजियत में नज़र आने लगी। मैं उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा तो उसने मेरे हाथ झटक दिए। फिर बमुश्किल लंगड़ा लंगड़ा कर चलती कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। लेकिन ये सारी बातें मेरे लिए हैरान कुन थी। काफ़ी देर तक सपेरा बीन बजाता रहा, लेकिन उसे कोई नाग नज़र नहीं आया। फिर वो मेरे पास आया और कहने लगा, साहब जी मुझे एक नागिन की मौजूदगी यहाँ महसूस हो रही है, लेकिन हैरत की बात है कि वो नागिन इतनी ताकतवर है कि उस पर मेरे बीन बजाने का कोई असर ही नहीं हो रहा। ऐसे लगता है कि वो आपके घर में ही कहीं छुपी हुई है। उसकी बात पर मैं तशवीश में मुब्तला हो गया। फिर मैं उससे कहने लगा कि ठीक है, अगर वो दोबारा नाग नज़र आया तो मैं तुम्हें दोबारा अपने बंगले पर बुलवा लूँगा। पूरे 2 दिन तक नबीला कमरे में बंद रही और कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं बराबर उससे पूछता रहा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ है, लेकिन वो तो कमरे से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर 2 दिन बाद जब बाहर आई तो निहायत नकाहत ज़दा महसूस हुई, जैसे सालों से बीमार हो। मैंने उसे अच्छी तरह से चेक किया, फिर उसे दवाई दी, लेकिन अगले दिन मैं घर आया तो मुझे गेट पर खड़ा चौकीदार नज़र नहीं आया। माली बाबा ने मेरे लिए गेट खोला। मैंने उनसे चौकीदार की गैर मौजूदगी का सवाल किया तो वो कहने लगा कि साहब जी वो तो कल रात से ही गायब है, उसका काम तो मैं ही कर रहा हूँ। पहले खाना पकाने वाले का गायब होना, फिर चौकीदार का ये सब बातें करना मुझे शदीद परेशानी में मुब्तला कर गया। कुक तो एक बहुत उम्र रसीदा शख्स था, लेकिन चौकीदार अच्छा खासा जवान सेहतमंद आदमी था। वो 24 घंटे ही मेरे पास की ड्यूटी देता, फिर महीने बाद तनख्वाह लेकर 1-2 दिन के लिए अपने घर चला जाता। मैंने उसके घर का नंबर मिलाया तो उसकी माँ ने फ़ोन उठाया। मैंने चौकीदार का हाल अहवाल पूछा तो कहने लगी, साहब जी वो तो आपके पास ही होंगे, हमें तो नहीं मालूम कि वो इस वक्त कहाँ हैं। मैं हैरानी से उसकी माँ से कहने लगा कि क्या मतलब, वो घर पर नहीं आया? तो वो कहने लगी, नहीं नहीं, अभी तनख्वाह मिलने में वक्त था, इसलिए उसने 4 दिन बाद आने का कहा था। मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझसे सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि मैंने CCTV कैमरे नहीं लगाए थे। पहले भी कुक का कत्ल इतने भयानक तरीके से हो चुका था। मैं उस मामले में बाल बाल बच गया। अब चौकीदार का गायब होना मुझे शदीद परेशानी का शिकार कर रहा था। फिर मैंने उसके पास वाले बंगलों में चौकीदार से जाकर पूछा तो वो कहने लगे कि वो हमें भी नहीं दिखाई दिया। वैसे भी एक पुरसुकून इलाका था, यहाँ के मुकीन एक दूसरे की खैर खबर रखने में भी कोई दिलचस्पी न रखते। फिर एक दिन मुझे पुलिस थाने से फ़ोन आया। पुलिस वालों ने मुझे थाने बुलवाया था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ऐसे लगता जैसे कुक के कत्ल का राज खुल गया है या नहीं, या फिर उन्हें मालूम हो गया कि वो मेरे यहाँ नौकरी करता था। लेकिन जैसे ही मैं थाने में पहुँचा तो एक क़यामत ख़ेज़ खबर मेरी मुंतज़िर थी। पुलिस वालों ने मुझे चौकीदार की तस्वीर दिखाई और कहने लगे, डॉक्टर साहब ये आदमी आपके बंगले पर ही काम करता था क्योंकि इसकी जेब से आपका कार्ड मिला है। मैं तशवीश से कहने लगा कि हाँ, ये मेरे बंगले पर चौकीदार था, लेकिन पिछले 2 दिन से गायब था। फिर पुलिस वालों ने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। चौकीदार का किसी ने कत्ल करके झाड़ियों के पीछे उसकी लाश छुपाई थी।
मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक एक करके मेरे बंगले में काम करने वाले 2 बंदे कत्ल कर दिए जाएंगे और मुझे इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। पुलिस वाले मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि उन लोगों की किसी से दुश्मनी थी या किसी गलत काम में मुलव्वस थे, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक अरसे से मेरे पास काम कर रहे थे, निहायत नेक और शरीफ इंसान थे। पुलिस ने काफ़ी देर तक सवाल जवाब किए। फिर मैं थके हुए जहन के साथ घर आ गया। मेरा किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा था। खामोशी से आकर अपने कमरे में लेट गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा तो माली बाबा परेशान चेहरा लिए खड़ा था। वो सर झुकाकर कहने लगा कि साहब जी, मैं काम छोड़कर जाना चाहता हूँ। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं तो हैरान रह गया। कहने लगा कि क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? किस वजह से आप काम छोड़कर जा रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि मैंने कभी भी आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की, बल्कि हमेशा तनख्वाह के मामले में भी कभी कोई कोताही नहीं बरती। वो सर झुकाकर कहने लगे कि साहब जी, वजह ये नहीं है, बल्कि वजह कुछ और है और मुझे शक है कि चौकीदार और कुक को मारने के पीछे इस घर में रहने वाली लड़की नबीला का हाथ है। माली बाबा ने जैसे मेरे सर पर आसमान गिरा दिया। मैं हैरत से कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? माली बाबा कहने लगा, वो लड़की मुझे ठीक नहीं लगती। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, रात का वक्त था। मैं लॉन में चक्कर लगा लगा कर अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, जो रात से बढ़ा हुआ था। अचानक मेरी नज़र चौकीदार पर पड़ी, जो नबीला के कमरे की तरफ जा रहा था। मैंने उसे कमरे में जाते देखा, लेकिन वापस निकलते नहीं देखा। इतना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस दिन के बाद से ही चौकीदार गायब है। ये उस रात की बात है जिस दिन आप अस्पताल से बहुत ज़्यादा लेट आए थे। माली बाबा ये सब बताकर मुझे निहायत परेशानी में मुब्तला कर रहे थे। वो मज़ीद कहने लगे कि जिस तरह कुकुर चौकीदार की मौत हुई है, इस तरह मुझे भी लगता है कि मैं भी मारा जाऊंगा। एक अजीब सा खौफ है जो मुझे यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दे रहा। इसलिए साहब जी, आप मेरा हिसाब कर दें और मुझे नौकरी से फारिग कर दें। मैंने माली बाबा को तसल्ली दी और कहने लगा कि आप फिक्र न करें, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इस मामले की पूरी जांच पड़ताल करता हूँ। आप बस खामोशी से यहाँ काम करते रहें। अब मैं ना सिर्फ आप पर बल्कि उस लड़की नबीला पर भी भरपूर नज़र रखूँगा। मेरा वादा है कि आपकी जान को यहाँ कोई ख़तरा नहीं होगा। नबीला, जिससे मैं शादी करने के ख्वाब देख रहा था। अब माली बाबा की बातों ने मुझे निहायत गुस्सा दिला दिया। मैं अपने दिल में उसके लिए नफ़रत महसूस कर रहा था, इसलिए फ़ौरन उसके कमरे में जा पहुंचा। जैसे ही उसके कमरे का दरवाज़ा खोला, वो कमरे से ही गायब थी। मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। अब मैं कमरे में वापस आकर खिड़की के पास परेशानी से अपनी पेशानी में सर रहा था। अचानक ही मुझे लॉन की दीवार में वही मोटा सा नाग बैठा नजर आया। वो बड़ी शान से वहाँ पर फन फैलाए बैठा था। फिर मेरे देखते ही देखते दीवार से रेंगता हुआ नीचे लॉन में आया और धीरे धीरे अंदर की तरफ आने लगा। मैं भागता हुआ नीचे गया, लेकिन जैसे ही मैंने लॉन्च का मरकज़ी दरवाज़ा खोला तो खौफ से कांप कर रह गया, क्योंकि मेरे सामने नबीला खड़ी थी। मैं अपना खौफ उस पर जाहिर नहीं करना चाहता था, इसीलिए कड़क लहजे में कहने लगा कि तुम कहाँ गई थी? तुम्हारा तो कोई जानने वाला भी नहीं है ना, फिर बाहर किससे मिलने गई थी तुम? वो कहने लगी कि मैं तो ये सामान लेने गई थी, खाने पीने का सामान किचन से ख़त्म हो गया था, इसलिए बस मैं वही लेने करीबी दुकान पर गई थी। उसके हाथ में वाकई सामान की थैलियाँ थी। फिर मैंने उसे अंदर आने का इशारा कर दिया। ये सारी बातें मेरी समझ से बाहर हो गई थी। मैं अच्छी भली अपनी नौकरी कर रहा था, लेकिन अब अपने घर के मसले मसाइल में उलझ कर रह गया। दूसरे दिन ख़राब तबीयत होने की बिना पर मैंने अस्पताल से छुट्टी की, बल्कि मेरा इरादा था कि मैं 2 दिन अस्पताल की ड्यूटी नहीं दूंगा, बल्कि घर पर ही रहकर आराम करूंगा, क्योंकि मैं शदीद ज़हनी तनाव का शिकार था। फिर 2 दिन में घर पर ही रहा। अचानक ही तीसरे दिन मुझे अस्पताल से फ़ोन आया और इमरजेंसी में आने को कहा गया। मैं जैसे ही अस्पताल पहुंचा तो सामने पुलिस को देखकर हैरान रह गया। अस्पताल का डायरेक्टर बहुत परेशानी से वहां खड़ा था। फिर मुझे देखकर पुलिस वालों से कहने लगा कि यही वो डॉक्टर है जिसने अस्पताल की लेबॉर्ट्री से वो ख़ास जड़ी बूटियाँ चुराई हैं जो हम कैंसर के मरीज़ों की दवाई में इस्तेमाल करते हैं। अस्पताल के डायरेक्टर की बात ने तो मुझे हैरान कर दिया। मैं उनसे कहने लगा कि आप ऐसे कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं?
آج 2 दिन बाद मैं अपनी ड्यूटी पर हाजिर हुआ हूँ, इसके बावजूद आप मुझ पर ऐसे घटिया इल्जामात लगा रहे हैं। मैंने अस्पताल की लेबॉरेटरी से कोई जड़ी बूटी नहीं चुराई है। फिर पुलिस और डायरेक्टर ने मिलकर मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाई, जिसमें बाकायदा आते जाते लेबॉरेटरी में मैं नज़र आ रहा था। फिर मेरे साथ अस्पताल में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स को तलब किया गया। जब उनसे पूछा गया कि डॉक्टर आदिल अस्पताल आए थे या नहीं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, डॉक्टर साहब ने तो हमें फ़ोन करके बताया था कि वो 2 दिन तक ड्यूटी पर नहीं आएंगे। फिर पुलिस हर तरफ से तफ्तीश करके थक गई, लेकिन सबने उन्हें यही जवाब दिया कि डॉक्टर आदिल अस्पताल नहीं आए थे। अब अस्पताल का पूरा अमला हैरान था कि अगर डॉक्टर आदिल अस्पताल नहीं आए तो फिर कौन था जो उनके जैसे हुलिये और कपड़ों में मलबूस होकर लेबॉरेटरी में से वो जड़ी बूटियां चुराने आया था। सबसे अहम बात यह थी कि उस शख्स का चेहरा वाज़ेह नहीं था। कद काठ में वो मेरे जैसा ही था, लेकिन छुपाने की वजह से पुलिस वालों ने मुझे घर जाने का कह दिया था। मैं पहले ही शदीद जहनी दबाव का शिकार था। उस वाक़े के बाद भी मज़ीद परेशान हो गया। मैं चाय बनाने की गर्ज से नबीला को आवाज़ें देता रहा, लेकिन वो नहीं आई। मैंने फिर माली बाबा को बुलाकर पूछा तो वो कहने लगे, साहब जी, वो तो ये घर छोड़कर चली गई है। मुझे कह रही थी कि साहब को बता देना अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ये बात सुनकर मुझे निहायत दुख हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस तरह अचानक घर से चली जाएगी। दूसरे दिन आधी रात को मैं सोया था कि अचानक ही मुझे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने आंखें खोलकर देखी तो हैरान रह गया। मेरे सामने नबीला खड़ी थी। उसके चेहरे पर बेहद परेशानी थी। आधी रात का वक्त था। मेरे सामने गिड़गिड़ा कर रोने लगी। फिर कहने लगी, डॉक्टर साहब, खुदा के लिए मेरी मदद करें, मेरे शोहर की जान खतरे में है। आप किसी भी तरह करके उन्हें बचा लें। मैं हैरान रह गया। फिर कहने लगा, नबीला, कैसी बातें कर रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम गैर शादीशुदा लड़की हो। फिर वो कहने लगी कि साहब जी, मैं आपको सब बता दूंगी, आप प्लीज़ मेरे साथ आएं। आधी रात के उस पहर वो मुझे अपने साथ लेकर कहाँ जा रही थी मैं नहीं जानता था, लेकिन एक डॉक्टर होने की वजह से अगर किसी मरीज़ की जान को ख़तरा था तो उसे बचाने के लिए मुझे अपना फ़र्ज़ अदा करना था। वो नहायत तेज़ कदमों से चलती जा रही थी। उसकी ये तेज़ी देखकर मैं हैरान था। मर्द होने के बावजूद भी मेरे कदमों में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उसकी तरह तेज़ तेज़ चल पाता। काफ़ी दूर तक वो पैदल चलती रही। फिर बिलाखिर एक जंगल में पहुंच गई। वो नहायत घना जंगल था, जहाँ पर यकीनन बहुत सारे जहरीले सांपों की मौजूदगी मुमकिन थी। इस तरह का इलाका एक पुरखतर रास्ता था। वो न जाने मुझे कहाँ लेकर जा रही थी। मैं उसकी इस हरकत पर नहायत परेशान था, लेकिन जिस तरह से वो रो रो कर तड़प रही थी, ऐसे लगता था कि उसके ऊपर ज़रूर कोई बड़ी मुसीबत पड़ी है। फिर वो एक झाड़ी के पास रुक गई और कहने लगी, साहब जी, वो देखें, वो है मेरा साथी नाग, वो मेरा शोहर है। उसकी बात पर मुझे शदीद धचका पहुंचा। रोते रोते कहने लगी, मैंने वो जड़ी बूटियां चुरा ली थी जो इसको बचाने में मेरे काम आ सकती थी, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी भी इसकी हालत ठीक नहीं है, आप इसे अच्छी तरह से देखें। मैं शदीद खौफज़दा था। आज तक ऐसे हालात से दो चार नहीं हुआ था, इसलिए उससे कहने लगा कि भला मैं एक नाग का इलाज कैसे कर सकता हूँ? अगर ये नाग तुम्हारा शोहर है तो तुम कौन हो? वो अपनी सब्ज़ आंखों से मुझे देखती रही। फिर कहने लगी, मैं इसकी साथी नागिन हूँ। आज से 6 महीने पहले हम दोनों एक ख़ास तपस्या के लिए उन वादियों में जा रहे थे जहाँ पर बैठकर हम अपने लिए ख़ास इबादत करने वाले थे। मेरी शक्तियाँ पूरी हो गई थी। मैं अपने आप को हर इंसानी रूप में डाल सकती थी, लेकिन मेरा साथी नाग अभी उन शक्तियों से थोड़ी दूरी पर था। हम जहाँ से गुजर रहे थे वहाँ पर अचानक ही बहुत सारे सपेरों का एक गिरोह जाने लगा। उनकी नज़र हम पर पड़ चुकी थी। मैंने जल्दी से अपना भेस बदला, खुद को इंसानी रूप में ढालकर वहाँ से भाग गई, लेकिन मेरा साथी नाग उनके हत्थे चढ़ गया। मैं परेशानियों से झाड़ी में छुपी थी, लेकिन सपेरों ने नाग को पकड़ने की बहुत कोशिश की, कामयाब न हो सके। ये देखकर मैं परेशान हो गई कि वो शदीद ज़ख्मी हालत में झाड़ी में छुपा बैठा था। मैं चाहती तो अभी और उसी वक्त सपेरों को ख़त्म कर सकती थी, लेकिन नाग देवता की तरफ से मुझे ये इजाज़त नहीं थी। फिर मैंने उसे उन झाड़ियों में छुपने का कहा और ख़ुद उसके लिए ख़ास जड़ी बूटियाँ लेने इंसानों की दुनिया में आ गई, जहाँ मुझे आप नज़र आए। जानती थी कि अस्पताल की लेबॉरेटरी में कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हम नाग इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ही एक दिन भेस बदल कर आप जहाँ काम करते थे वहीं से मैंने वो जड़ी बूटियाँ चुरा ली।
लेकिन इसके बावजूद मेरे साथी नाग की तबीयत में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप इसे देखें, आपने इसे बचा लिया तो मैं वादा करती हूँ कि मैं अपना कीमती नागमणि आपको दे दूँगी। उसने मुझसे झूठ बोलकर ये सब कुछ हासिल किया था, लेकिन अभी उस नाग की जान बचाना मेरे लिए ज़रूरी था। फिर मैंने बाकायदा उसका इलाज शुरू किया और उससे कहने लगा कि मैं 2 दिन बाद इसे यहाँ देखने आया करूँगा। वो बार बार मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। जाते जाते एकदम रुका, फिर कहने लगा, तुमने ही चौकीदार और कुक को कत्ल किया है? उसकी सब्ज आंखों में रोशनी चमकी, फिर सर झुकाकर कहने लगी, हाँ, क्योंकि वो मुझे लड़की समझकर मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन्हें बहुत मना करना चाहा कि मैं कोई लड़की नहीं हूँ जिसे तुम बेबस करके उसकी इज्जत तार तार कर दोगे, लेकिन वो यकीन ही नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर जब मैंने उन्हें अपनी असलियत दिखाई तो खौफ से उनका वहीं दम निकल गया। पहले मेरे पास कुक आया था, मुझे जहर करने के लिए मेरे हाथ पांव बांध रहा था। मैंने उसे बहुत कहा कि मैं डॉक्टर साहब को बता दूंगी, लेकिन वो कहने लगा कि डॉक्टर साहब तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि हम सालों से उसके मुलाजिम हैं। अगर हमने ये कह दिया कि तुम गलत लड़की हो तो वो कभी भी तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा। जब वो मुझे पूरी तरह बेबस कर चुका तो मैं अपने असल रूप में आई थी। पहले तो वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मुझे नागिन के रूप में देखा तो सारी ताकत वहीं भूल गया। वैसे भी गंदी नीयत रखने वालों का यही अंजाम होता है। उसके मरने के बाद मैं पुरसकून तरीके से उस घर से रह रही थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उस घर में रहने वाला चौकीदार भी बदनीयत फितरत का आदमी है। मौका देखकर उसने भी मुझसे फ़ायदा उठाना चाहा। फिर मैंने उसका भी वही हाल किया जो कुक का किया था। मुझे ऐसे इंसानों से नफरत है जो किसी बेबस और लाचार लड़की को देखकर उन पर बुरी नीयत रखना शुरू कर देते हैं। मैं उसकी बात अच्छी तरह से समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती थी, इसीलिए खामोशी से पलट कर आ गया। मेरे घर में बार बार नजर आने वाला नाग कोई और नहीं बल्कि ये लड़की नागिन थी जो मुझसे मदद मांगने कई दिन तक मेरे घर में मौजूद रही। और ये बात थी कि मुझे इस बात की खबर बहुत देर से हुई। मैं नहीं जानता था कि उसने चौकीदार और कुक को मारकर अच्छा किया या बुरा, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि चौकीदार की नज़रें उस लड़की को देखकर बदल ज़रूर गई होंगी, क्योंकि मर्द फितरतन ऐसी तबीयत का मालिक होता है कि वो किसी भी यतीम लड़की को देखकर उस पर अपनी इजारादारी कायम करे। मैंने उसके साथ ही नाग का इलाज शुरू कर दिया। मैं जानता था कि वो मेरे भेस में अस्पताल में से जड़ी बूटियाँ चुराने गई थी। जब आखिरी बार मैं उसे देखने गया तो वह नबीला के रूप में मेरे सामने मौजूद थी। कहीं से भी नहीं लगती थी कि वो एक ख़तरनाक नागिन होगी, वो भी एक जहरीली नागिन। मुझसे कहने लगी कि डॉक्टर साहब, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मैं अपने साथी नाग के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारूंगी। अगर इसे कुछ हो जाता तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ़ न करती, क्योंकि मैंने तो अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी नहीं। लेकिन आपने किसी मतलब के बगैर इसकी जान बचाकर ये साबित कर दिया कि दुनिया में अच्छे इंसानों की कमी नहीं है। ये मेरी तरफ से आपके लिए हकीर सा तोहफा है। उसने अपनी थैली मेरे सामने की, जिसमें एक खूबसूरत नागमणि हीरे की मानित जगमगा रही थी। फिर वो कहने लगी कि ये नागमणि मेरे बाप की निशानी है। उसने 200 साल अपनी ज़िंदगी जी थी, फिर बीमारी की हालत में मर गया। जाते जाते वो अपनी नागमणि मेरे हवाले कर गया था, जिसे मैंने अपने पास संभाल कर रखा था। इसे आप मेरी निशानी समझकर अपने पास रखिएगा। ये नागमणि जिसके पास होती है, ये समझ लें कि उसकी किस्मत खुल जाती है। मैंने उसका दिया हुआ कीमती तोहफा थाम लिया। वो बार बार मेरी तरफ तशक्कुर भरी नज़रों से देखती। मैं भी आखिरी बार उस पर नज़रें डालता वहाँ से लौट आया। घर आया तो माली बाबा मेरे इंतज़ार में परेशान बैठा था। मुझे देखकर शुक्र अदा करने लगा। मुझे कहने लगा कि साहब जी, आप कहाँ चले गए थे? सुबह से नज़र नहीं आए। मैं तो शदीद परेशानी में गिरफ्तार था। दिल में अजीब अजीब वहम सता रहे थे। मैं कुछ उदास और परेशान भी था, इसीलिए माली बाबा के सामने अपना पूरा दिल खोल कर रख दिया। मैंने उस लड़की की हकीकत माली बाबा को बता दी कि किस तरह से वो एक नागिन थी जो एक लड़की के भेस में हमारे घर में रह रही थी। वो हैरत ज़दा से ये सारी कहानी सुन रहे थे। फिर कहने लगे, ऐसे कैसे मुमकिन है? वो नागिन इतने दिन तक हमारे साथ हमारे घर में रही और हमें इस बात का इल्म ही नहीं था। फिर मैंने उन्हें तसल्ली दी कि आपको इस घर से जाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसके खौफ से आप ये घर छोड़कर जा रहे थे वो खुद ही यहाँ से चली गई है। माली बाबा अब मेरे साथ काम कर रहे थे। फिर मैंने उनकी मदद से ही 2 ईमानदार और शरीफ इंसानों को चौकीदार और कुक की जगह पर नौकरी दे दी।
फिर एक दिन मैं रात गए तक अस्पताल से वापस लौटा कि अचानक ही सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक खूबसूरत लड़की ने मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने उसे शक भरी निगाहों से देखा। फिर मैंने देखा तो वो ज़ख्मी हालत में थी। उसके बाजू में चोट लगी थी, साथ ही पेशानी भी खून आलूद थी। वो नकाहत सी आवाज़ में कहने लगी कि मुझे अस्पताल ले चलें, मेरी हालत बहुत ख़राब है। मुझे पूरा यकीन था कि ये लड़की के रूप में एक नागिन है, इसीलिए मैं उसे शक भरी नज़रों से देखने लगा। जब वो मेरे सामने बेहोश होकर गिर गई तब मुझे होश आया। वो महक नाम की लड़की मेरे सामने ही बैठी थी, जबकि मैं उसे मुसलसल यही कह रहा था कि तुम एक इंसानी लड़की नहीं बल्कि एक नागिन हो और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। वो मेरी बात सुनकर रोने लगी और फिर कहने लगी कि डॉक्टर साहब, आपने मेरे इलाज करके मुझ पर एहसान किया है, लेकिन मुझ पर इल्ज़ामात ना लगाएं। थोड़ी देर बाद ढूंढते ढूंढते उसके वालिद भी मेरे बंगले पर पहुंच गए। उन्हें देखकर मैं हैरत ज़दा था। वो मेरे अब्बू के पुराने दोस्त थे। वो अपने बाप के गले लगकर रो रही थी और मैं अब थोड़ा शर्मिंदा हो गया। शायद उस नागिन के धोखे ने मुझे इंसानों पर यकीन करने वाली आंख को धुंधला दिया था। थोड़े दिन बाद ही मैं अपनी अम्मी अब्बू को बुलाकर अपना रिश्ता उस लड़की के घर भेजने वाला था, क्योंकि उस लड़की की आंखें भी गहरी सब्ज रंग की थी जो मुझे उस नागिन की याद दिलाती थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।